ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 12। एतद् अन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्थिताम्। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। O great sage who know everything about Krishna, please describe in detail all the activities of which I have inquired and also those of which I have not inquired. For I have full faith and I am very eager to hear them. इस श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है तो हम दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। नैसाति दुःसहाक्षुं मां त्यक्तोदम् अपि बाधते पिबन्तं त्वं मुखाम्भोजं च्युतं हरिकथामृतम्। Because of my vow on the verge of death, I have given up even drinking water. Yet, because I am drinking the nectar of topics about Krishna, which is flowing from the lotus mouth of your lordship, my hunger and thirst, which are extremely difficult to bear, cannot hinder me. Purport. To prepare to meet death in 7 days, Maharaj Parikshit gave up all food and drink. As a human being, he was certainly both hungry and thirsty. Therefore, Sukadeva Goswami might have wanted to stop narrating the transcendental topics of Krishna, but despite his fast, Maharaj Parikshit was not at all fatigued. The hunger and thirst from my fast do not disturb me, he said. Once, when I felt very thirsty, I went to the ashram of Shamik Muni to drink water, but the Muni did not supply it. I therefore wrapped a dead snake over his shoulder, and that is why I was cursed by the Brahman boy. Now, however, I am quite fit. I am not at all disturbed by my hunger and thirst. This indicates that although on the material platform there are disturbances from hunger and thirst, on the spiritual platform there is no such thing as fatigue. The entire world is suffering because of spiritual thirst. Every living being is Brahman or a spirit soul and needs spiritual food to satisfy his hunger and thirst. Unfortunately, however, the world is completely unaware of the nectar of Krishna Katha. The Krishna consciousness movement is therefore a boon to philosophers, religionists and people in general. There is certainly a charming attraction in Krishna and Krishna Katha. Therefore, the absolute truth is called Krishna, the most attractive. The word Amrit is also an important reference to the moon, and the word Ambuja means lotus. The pleasing moonshine and pleasing fragrance of the lotus combine to bring pleasure to everyone hearing Krishna Katha from the mouth of Sukadeva Goswami. As it is said, Matirna Krishna Parata Satoba Mudho Vipaddeta Griha Vratanam Adanta Gobhir Visdam Tamisram Puna Punascharvita Charvananam. Because of the uncontrolled senses, persons too attached to materialistic life make progress towards hellish conditions and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclination towards Krishna is never aroused, either by the instruction of others or by their own efforts, or by a combination of both. At the present moment, all human society is engaged in the business of chewing the chewed. Punas charvita charvananam.
People are prepared to undergo mrityu samsara vartmani, taking birth in one form, dying, accepting another form, and dying again. To stop this repetition of birth and death, Krishna Katha or Krishna consciousness is absolutely necessary. But unless one hears Krishna Katha from a realized soul like Sukdev Goswami, one cannot relish the nectar of Krishna Katha, which puts an end to all material fatigue, and enjoy the blissful life of transcendental existence. In relation to the Krishna consciousness movement, we actually see that those who have tasted the nectar of Krishna Katha lose all material desires, whereas those who cannot understand Krishna Katha regard the Krishna conscious life as brainwashing and mind control. While the devotees enjoy spiritual bliss, the non-devotees are surprised that the devotees have forgotten material hankerings. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurudmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Utapadakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitanscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. एतद अन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृताम। यहाँ महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप सब कुछ कृष्ण के बारे में जानने वाले हैं। मुने कृष्ण विचेष्टितम, विचेष्टितम का अर्थ है कि भगवान के जो कृष्ण विचेष्टितम, भगवान के जो कार्य हैं, भगवान के जो लीलाएं हैं, और वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ, सुखदेव गोस्वामी सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए महाराज परीक्षित उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जो मैंने पूछा है, जो मैंने प्रश्न किया है और जो मैंने प्रश्न नहीं किया है, आप मुझे उसके विषय में, कृष्ण की लीलाओं के विषय में बताइए, और मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृताम, श्रद्धानाय, बिकॉज आई एम नॉट एनवियस बट हैव ऑल फेथ इन हिम। तो सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित इस प्रकार से निवेदन कर रहे हैं कृष्ण कथा को विस्तृत रूप से जानने के लिए। तो इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि कितना आतुर है महाराज परीक्षित कृष्ण के विषय में जानने के लिए, और उनकी जो तीव्रता है वो कृष्ण के विषय में जानने की उनकी कितनी तीव्रता है, कितने वो आसक्त हैं भगवान के लीलाओं का श्रवण करने के लिए। और इस प्रकार अभी जो श्रीमद् भागवतम है यह बड़ा ही अलौकिक ग्रंथ है, क्योंकि दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक व्यक्ति भागवत होता है, एक पुस्तक भागवत होता है। तो यहाँ पुस्तक भागवत है, और ये जो पुस्तक भागवत है यह दो भागवतों के बीच में इसका परस्पर आदान प्रदान हो रहा है। एक भागवत है महाराज
सुखदेव गोस्वामी जो हैं, सुखदेव गोस्वामी एक महाभागवत हैं और जो कि श्रीमद् भागवतम को बोल रहे हैं, कृष्ण के विषय में बता रहे हैं। और दूसरे जो महाभागवत भक्त हैं वो महाराज परीक्षित हैं, जो कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए इतने उत्सुक हैं, इतने लालायित हैं। और उनकी जो श्रवण करने के लिए जो उनकी इच्छा है कितनी तीव्र है कि उस इच्छा को वह इस श्लोक में, जो दूसरे श्लोक है जिसमें तात्पर्य है, उसमें व्यक्त कर रहे हैं। नैसा अति दुहसहा छुन्माम त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतम त्वम मुखाम भोजत च्युतम हरि कथामृतम। तो वो सुखदेव महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि न ऐसा अति दुहसहा छुन्माम, जो क्षुत का अर्थ है, छुन का अर्थ है कि तृष्णा, जैसे प्यास। महाराज परीक्षित अभी श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद चल रहा है और शायद 5 दिन या 6 दिन जो हैं वो बीत चुके हैं। 7 दिन महाराज परीक्षित श्रवण कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। और इतने दिनों तक महाराज परीक्षित ने ना ही कि उन्होंने कुछ प्रसाद ग्रहण किया है, ना ही जल ग्रहण किया है, और ना ही वो रुके हैं, ना ही वो थके हैं। तो यह जो है, यह बहुत ही कठिन है एक बद्ध जीव के लिए। इस प्रकार का अवस्था को प्राप्त करना यह बहुत ही दुष्कर है, यह संभव नहीं है, यह बहुत ही दुष्कर है कि बद्ध जीव के लिए ऐसी अवस्था को प्राप्त करना। परंतु यहाँ सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि ऐसा यदि आपको लगता है कि मैं इतने दिन हो गए हैं और मैं थक चुका हूँ, तो आप कृष्ण कथा को, आपको ऐसा लग रहा हो कि बंद करें। परंतु मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कृष्ण कथा को का प्रवाह जो है, अमृत जो प्रवाह है आपके जो श्रीमुख से आ रहा है, तो इसको आप बंद मत कीजिए, परंतु इसको निरंतर इसको आगे बढ़ाते रहिए। और कह रहे हैं नैसा अति दुहसहा छुन्माम त्यक्तोदम अपि बाधते। तो अपि बाधते, बाधते का अर्थ है जो कि हिंडर करता है या जो अवरुद्ध करता है, जो बंधन करता है, बांधता है। तो भूख और प्यास जो है वह जीवों को बांधता है। जब जीव को बहुत अति भूख और प्यास लगती है तो वह भूख और प्यास से क्षुब्ध होकर, भूख और प्यास से त्रस्त होकर उसे और किसी चीज की इच्छा नहीं होती है। वो किसी भी प्रकार से अपने क्षुधा को, अपने भूख और अपने प्यास को तृप्त कराना चाहता है। परंतु यहाँ सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पर महाराज परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि नैसा अति दुहसहा छुन्माम त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतम त्वम मखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। तो मैंने यह वाव लिया है, मैंने यह प्रण लिया है कि मैं मृत्यु तक, जब तक मेरी मृत्यु आएगी तब तक मैं बिना खाए बिना पिए मैं कृष्ण कथा का अनवरत श्रवण करूंगा। और यह कृष्ण कथा जो है वह आपके पिबंतम त्वम मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। तो मैं चूंकि आपके श्रीमुख से जो कृष्ण कथा उत्पन्न हो रही है, जो कृष्ण कथा की गंगा बह रही है, मैं उस अमृत का पान कर रहा हूं। तो चूंकि मैं कृष्ण कथा के अमृत का पान कर रहा हूं, जो कि आपके श्रीमुख से उत्पन्न हो रही है, जो श्रीमुख से निकल कर मुझे पोषित कर रही है, तो इस प्रकार से यह जो मेरी भूख है, मेरी प्यास है, यह मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है। और यह भूख और प्यास मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है क्योंकि मैं आपके श्रीमुख से कृष्ण कथा का अमृत का निरंतर पान कर रहा हूं। तो यह जो है एक दिव्य अवस्था है। महाराज परीक्षित की अवस्था हम समझ सकते हैं कि दिव्य है, क्योंकि बद्ध अवस्था में कोई भी जीव के लिए यह संभव नहीं है कि वह 5 दिन तक, 6 दिन तक, 7 दिन तक बिना आराम किए और जो है बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना रेस्ट लिए वो निरंतर जो है कथा का श्रवण करते रहें। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो एक मुक्त जीव हैं, मुक्त आत्मा हैं, और
वो सिर्फ मुक्त जीव ही नहीं है, मुक्त आत्मा ही नहीं, परंतु वो भगवान के परम भक्त हैं और राधा रानी के परम भक्त हैं, इसलिए उनका नाम शुक है। तो महाराज परीक्षित भी भगवान के परम भक्त हैं, महाभागवत भक्त हैं, इसलिए यह कथा जो है यह दो महाभागवतों के बीच में श्रवण और कीर्तन किया जा रहा है। और महाराज परीक्षित के उस लालसा को देखकर सुखदेव गोस्वामी भी बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए, सुखदेव गोस्वामी भी निरंतर उस कथा को अनवरत कह रहे हैं और महाराज परीक्षित उस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उस कथा का पान कर रहे हैं। तो यहाँ परीक्षित महाराज इंगित करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, आप यह ना सोचें कि मैं थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, चूंकि मैं आपके श्रीमुख से इस कृष्ण कथा का अमृत पान कर रहा हूँ, इसलिए यह जो भूख और प्यास जो अत्यंत कठिन है एक बद्ध जीव को, उसको उस वेग को सहन करना, परंतु यह वेग जो है वो मुझे बाध नहीं कर रहा है, वो मुझे त्यक्तोदम अपि बाधते, यह मुझे बंधन नहीं कर रहा है, मुझे रुकावट नहीं कर रहा है। तो यहाँ सुखदेव को यहाँ महाराज परीक्षित जो हैं वह जो हैं वो भगवान के परम भक्त होने के कारण और भगवान के कथा का श्रवण करने की इतनी लालसा के कारण वो भूख और प्यास के अर्थात भौतिक परिस्थिति से वो ऊपर उठ गए हैं और उनका जो अवस्था है वो दिव्य अवस्था में है और दिव्य अवस्था में वो सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि सुखदेव गोस्वामी से कथा का श्रवण करते हुए उनकी अवस्था दिव्य हो गई है। और जो भगवान के महाभागवत भक्त हैं वो उनके जीवन में जो भी घटित होता है वह घटना भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। जैसे यहाँ श्रीमद् भागवतम के प्रथम चरण में हमने यह पढ़ा था कि महाराज परीक्षित एक बार जब जंगल में गए थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी, तो उस प्यास को बुझाने के लिए महाराज परीक्षित ने एक समीक ऋषि के आश्रम में गए, यह सोचकर, यह आशा करके कि उस ऋषि के आश्रम में मुझे कुछ जल मिलेगा जिससे कि मैं अपने प्यास को बुझा सकूं। परंतु जब वो उस समीक ऋषि के आश्रम में गए तो उनको किसी ने कहा नहीं कि आइए बैठिए, वो राजा हैं और राजा जो होता है वो पूरी प्रजा का जो है पिता के समान है। यहाँ तक कि जो ऋषि महर्षि हैं उनके लिए भी राजा जो है पिता के समान है, क्योंकि राजा जो है वह धर्म के अनुसार समस्त अपने नागरिकों का पालन करता है। तो जो ब्राह्मण हैं, ऋषिगण हैं, वह भी राजा को सम्मान देते हैं और ऋषि जो हैं उनकी अवस्था को देखकर राजा उन्हें पूजते हैं। परंतु यह ऋषि का भी कर्तव्य है कि राजा का सम्मान करें, क्योंकि वह राजा जो है, एक धार्मिक राजा जो है, वह एक राज्य के लिए एक भगवान का वो प्रतिनिधि होता है, जो भगवान के नियम के अनुसार, भगवान ने जिन भौतिक संसार के लिए जिन नियमों को दिया है उस नियम को वह कड़ाई से उसको अनुशासन करता है और उस नियमों को बना कर रखता है, जिससे कि जो उसके नागरिक हैं वो कृष्ण भावना भावित हो सकें और इस प्रकार वो अपने जीवन को पूर्ण कर सकें। तो यह जीवों को कृष्ण भावना भावित करना, जीवों को भगवान के दिए गए वर्णाश्रम के अनुसार राज्य को चलाना और यह सुनिश्चित करना कि जीव जो हैं उनकी जो प्रजा है वह पाप योनि में नहीं, जो वह पाप कर्म में ना निवृत्त होकर वह अपने आप को मुक्त करने के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में वो प्रगति कर रहे हैं, यह राजा का कर्तव्य है। परंतु उस समय समीक ऋषि जो हैं वह ध्यान में थे और उन्हें इसका आभास नहीं हुआ कि महाराज परीक्षित उनके आश्रम में आए हैं। और इस अपमान को देखकर महाराज परीक्षित ने क्या किया कि एक जो मृत सर्प था वो उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। तो यह जो है महाराज परीक्षित तो महाभागवत भक्त हैं और यह लीला जो है विस्मित करने वाली है, भ्रमित करने वाली है। परंतु जो महाभागवत भक्त होते हैं उनके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है
वह भगवान की इच्छानुसार होता है। तो जो महान भक्त हैं वो इन सभी विषय वस्तुओं को जानते हैं। तो जब समीक ऋषि के गले में वो मृत सर्प को उसके बालक श्रृंगी ने देखा, और श्रृंगी जो है वह एक उदंड बालक था, लेकिन उसमें ब्राह्मण की शक्ति थी, तो तुरंत उसने आचमन किया और अपने जनेब है उसमें से उसको लेकर और उसने शाप दे दिया कि जो भी राजा या जो भी व्यक्ति जो इस कार्य को किया है, जो मेरे पिता के गले में मृत सर्प को डाला है, उसके 7 दिन में सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। तो यहाँ महाराज परीक्षित, यहाँ हम देख रहे हैं कि वो श्रीमद् भागवतम का जब श्रवण कर रहे हैं तो इतने दिनों तक, 7 दिन तक महाराज परीक्षित ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं और कुछ थकान भी नहीं हुई, और निरंतर वो कृष्ण कथा का श्रवण करते रहे बिल्कुल सचेत होकर। और यहाँ तक कि महाराज सुखदेव गोस्वामी से वो बार बार प्रश्न भी कर रहे हैं और उन कथा को बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं और कथा उसमें वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव हुआ कि महाराज परीक्षित, वही राजा जो यहाँ 7 दिन तक कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं और थके नहीं, वही राजा जो है वो एक समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प को कैसे डाल सकते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वह भगवान की इच्छा अनुसार उनका जीवन चलता है। उनका जीवन जो है भगवान की योग माया के द्वारा चलता है। उनका जीवन जो है भगवान के महामाया के नियंत्रण में नहीं चलता है, परंतु योग माया के नियंत्रण में चलता है। और यह भगवान का अरेंजमेंट था कि जिस प्रकार से कृष्ण चाहते थे कि श्रीमद् भागवतम, जो बद्ध जीवों के लिए श्रीमद् भागवतम का उदय हो, और यह सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से महाराज परीक्षित इसको श्रवण करें और इस प्रकार से जगत का कल्याण हो। तो इस लीला को करने के लिए भगवान ने अपने भक्तों को चुना, और इस प्रकार जो है महाराज परीक्षित ने भगवान की प्रेरणा से ही इस कार्य को किया। और जब समीक ऋषि जब ध्यान से बाहर आते हैं और अपने ब्रह्म तेज से वो समझ जाते हैं कि ये क्या हुआ है, तो वह तुरंत सूचना भेजते हैं राजा के पास, महाराज परीक्षित के पास। और महाराज परीक्षित चूंकि महाभागवत भक्त हैं, इसलिए इतनी शक्ति होने के पश्चात भी, इतनी शक्ति होने के उपरांत भी वो श्राप को काउंटरैक्ट नहीं करते हैं या वो श्राप नहीं देते हैं, परंतु वो इसे भगवान का कृपा समझकर वो स्वयं को देह त्याग करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और अपने राज्य को त्याग कर गंगा जी के तट पर आते हैं और वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से वो कथा का श्रवण कर रहे हैं। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम जो है सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भूख और प्यास है, यह एक भौतिक परिस्थिति है। जो आध्यात्मिक स्थिति है, वहाँ पर जीव भूख और प्यास से या थकान से वो कभी भी उससे बाधित नहीं होता है। यहाँ हम महाराज परीक्षित के जीवन को देख रहे हैं कि वो भूख और प्यास से उनका जीवन, उनकी भक्ति जो है वो बाधित नहीं हो रही है, रुकावट नहीं पैदा कर रही है। वो इतने 7 दिन तक 7 रात तक बिना थके, बिना जल पिए, बिना कुछ प्रसाद ग्रहण किए निरंतर कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं। और इस प्रकार हम अनेक महान भक्तों के जीवन में हम देखते हैं कि जो सठ गोस्वामी थे, वो 1 दिन में 2 दिन में सिर्फ 1 चम्मच जो है वो छाछ, 1 चुल्लू छाछ भर लेते थे बस अपने शरीर को वहन करने के लिए। तो शरीर का वहन करने के लिए इतना एक थोड़ा छाछ लेना, थोड़ी सी दही लेना, वो भी 2 दिन में, तो यह कैसे संभव है? क्या है कोई बद्ध जीव जो है वो इस प्रकार कार्य को कर सकता है? परंतु जो गोस्वामी हैं वो भगवान के परम भक्त हैं और वो इस धरा में भगवान ने उनको प्रकट किया है जिससे कि वो जगत का कल्याण कर सके। और इस प्रकार जो वृंदावन के षट गोस्वामी हैं, वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्रीजीव गोपालको, तो गोस्वामी जो हैं वह भी बहुत कम मात्रा में प्रसाद को ग्रहण करते थे और इस प्रकार निरंतर वो
भक्ति का प्रचार प्रसार करने में लगे रहते थे। उसी प्रकार हम माधवेंद्रपुरी प्रभु के जीवन में देखेंगे। जो माधवेंद्रपुरी प्रभु हैं, तो वो जब वृंदावन आए, जब गोवर्धन के पास आए, तो एक वट वृक्ष के नीचे वो बैठे थे और बैठकर वो अपना भजन कर रहे थे। और माधवेंद्रपुरी जो हैं वो अयाचक वृत्ति को अपने जीवन में पालन करते थे। वो भी किसी भी चीज़ के लिए किसी से याचना नहीं करते थे। यदि कोई चीज़ उन्हें, कोई प्रसाद, कोई जल या कुछ दूध कुछ मिल जाए, तो वो कृष्ण का प्रसाद जो है उसको ग्रहण करते थे प्रेम पूर्वक। यदि नहीं मिला तो वो संतुष्ट रहते थे। वो भी कभी भी भूख और प्यास जो है वो उनके जीवन में बाधा, उनके भक्ति में जीवन में बाधा नहीं डालती थी। तो यह अवस्था जो है, यह मुक्त अवस्था है। यह अवस्था को कोई व्यक्ति चाहे तो वो उसको इमिटेट नहीं कर सकता है। इमिटेट करना बद्ध जीव के शक्ति में नहीं है। कोई यदि इमिटेट करने का प्रयास करेगा तो वो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि हमारी अवस्था, हम भौतिक अवस्था में, हम बद्ध अवस्था में, यही एक बद्ध जीव और मुक्त जीव में इस अंतर होता है। तो यहाँ जो आत्मा की अवस्था है, जो आध्यात्मिक अवस्था है, उस अवस्था में भूख प्यास थकान नहीं होती है। जैसे हम आत्मा को देखते हैं, तो आत्मा जो है वह आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। आत्मा का जो स्वभाव है वह एक क्षण के लिए भी जो है जीव बिना कार्य किए नहीं रह सकता है। तो आत्मा जो है हमेशा गतिशील है, हमेशा आत्मा एक्टिव है। आत्मा के लिए जो है वह कोई भूख प्यास थकान ये नहीं होता है। आत्मा हमेशा एक्टिव रहता है। तो यह अवस्था, आत्मा की अवस्था जो है वह वस्तुतः दिव्य अवस्था है। हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हम पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति भूख प्यास थकान यह से पीड़ित नहीं होता है। वह निरंतर कृष्ण को सेवा करना चाहता है, और कृष्ण को सेवा करने के लिए उसके जीवन में भूख थकान और ये सब चीजें प्रकट होती हैं, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। जैसे श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे कथाएं आती हैं, जैसे कि जब कृष्ण बलराम और जो ग्वाल बाल हैं वो वृंदावन में गाय चराते चराते मथुरा के तट पर आए थे, और अचानक वहाँ पर जो ग्वाल बाल हैं उनको भूख लगी। तो वो कृष्ण की इच्छा से लगी, क्योंकि कृष्ण जो हैं वो कृपा देना चाहते थे ब्राह्मण पत्नियों को। इसलिए योग माया जो है वो भगवान की लीला में योग माया अरेंजमेंट करती है, सारा स्टेज जो है तैयार करती है। तो योग माया के प्रभाव से जो ग्वालवान है उनको भूख लगी, और जो भगवान ने कहा कि मैं भी कुछ ग्रहण करना चाहता हूँ, तुम जाओ पास में कुछ ब्राह्मण जो हैं यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कुछ सामग्री लेकर आओ। और वो जो यज्ञिक ब्राह्मण थे उन्होंने ग्वाल बालों की बात को नहीं सुना। उन्होंने कहा कि कृष्ण सुदामा आए हैं, उन्होंने नहीं सुना। वो कंस के भय से भयभीत थे। और जब उनकी पत्नियों ने, जब भगवान ने ग्वाल बालों को उनके पत्नियों के पास भेजा, तो पत्नियों ने जैसे ही कृष्ण और बलराम के नाम को सुना, उन्हें इतना प्रेम था कि वो सारा यज्ञ की सामग्री को लेकर दौड़ पड़ी भगवान को समर्पित करने के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए। जो भी उनके पति उनको रोक रहे थे, फिर भी वो रुकी नहीं, और वह भगवान की तरफ खिंची गई और भगवान की तरफ भागी। ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ बहरी हैं, गूंगी हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रही हैं, क्योंकि भगवान की तरफ जो अट्रैक्शन है वह इतना प्रबल है। भगवान जो है वो सभी जीवों के हृदय को आकृष्ट करते हैं। सर्व आकर्षति इति कृष्ण। तो कृष्ण में ऐसा आकर्षण है, इसलिए कृष्ण को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कृष्ण कहा जाता है। सर्व आकर्षति इति कृष्ण। कृष्ण सबके हृदय को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। तो यहाँ महाराज परीक्षित के हृदय को भगवान ने आकृष्ट किया है, और इस प्रकार महाराज परीक्षित जो हैं वह जो भौतिक अवस्था है, भूख और प्यास की, थकान की, उस अवस्था से वो ऊपर उठ गए हैं। और उनकी लालसा इतनी तीव्र है, उनका अटैचमेंट, उनका आसक्ति भगवान के नाम से, भगवान की लीला से इतनी गहरी है कि वह इन चीज़ों को भूलकर वो निरंतर कृष्ण कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में जो दुख है, संसार में जो ताप है, संसार में जो असंतोष है,
यह कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण है। चूंकि इस संसार में जो लोग हैं वह कृष्ण भावना को ना करके, कृष्ण भावना को ना ग्रहण करके वह अन्य दूसरे मार्ग से अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, और इसलिए संसार में इतना दुख और असंतोष व्याप्त है। क्योंकि वस्तुतः जीव को संतुष्टि कृष्ण भावना भावित होकर ही हो सकती है। कृष्ण भावना द्वारा ही जीव को संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो वह जीव अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो कृष्ण जो है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, समस्त जगत के वो मालिक हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, वो सभी जीवों के, बद्ध जीवों के सुहृद मित्र हैं। ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। जब जीव इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में वह इस तथ्य को, भगवान के विषय में, भगवान के इस तथ्य को, इस सत्य को जानता है और उसे जब अपने जीवन में अंगीकार करता है, तब वह ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, तब वह बद्ध जीव शांति को प्राप्त करता है। तो कृष्ण भावनामृत के अभाव में समस्त जगत जो है वह दुखमय है, वह समस्त जगत जो है वह सफरिंग में है, वह कष्ट में है। शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो वहाँ पर अमेरिका में जो लोग हैं, जो युवक हैं, वो उस समय हिप्पी बन गए थे। और वो ऐसा नहीं था कि उनके पास भौतिक संपदा का, भौतिक वस्तुओं का अभाव था। इन सभी होने के, सब कुछ होने के उपरांत भी वो हिप्पी बन गए थे और रास्ते में वो नशा करते थे और नशा का जो इफेक्ट था उसको आध्यात्म समझते थे, और इस प्रकार उनका जीवन जो है वह हिप्पी वाला जीवन बन गया था। परंतु शिला प्रभुपाद के जब संपर्क में आए, जब वो कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आए, तो वो उन सभी चीजों को त्याग दिया और वो हैप्पी बन गए। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने आपको हिप्पी से हैप्पी बनाया है। तो हिप्पी से हैप्पी कैसे हो गए? जब उनके पास सारी भौतिक सुख सुविधाओं का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, फिर भी वो जो है हिप्पी बन गए थे। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी के पास आते हैं, जब वो 26 सेकेंड एवेन्यू में शिला प्रभुपाद स्टोर फ्रंट में रहते थे, वहाँ पर रहकर प्रचार करते थे। तो जो भक्त थे, जो पहले हिप्पी थे, बाद में वो शिला प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, भक्त बन गए, तो उनके पास कोई भौतिक उपलब्धि नहीं थी, कोई भौतिक सुविधा नहीं थी। वो जमीन पर सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे, और एक ही बाथरूम था, टॉयलेट था, जहाँ पर कि वो टॉयलेट जाते थे, स्नान करते थे। और यहाँ तक शिला प्रभुपाद भी उसी लाइन में खड़े रहते थे जहाँ पर कि दूसरे भक्त लोग रहते थे। और इस प्रकार वो शिला प्रभुपाद जी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे और पार्क में जाते थे और वहाँ पर हरिनाम करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया। तो इस प्रकार बिना भौतिक सुविधाओं के वो हैप्पी कैसे बन गए? क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित बने। तो कृष्ण भावना भावित होकर जीव जो है बिना भौतिक जो है उपलब्धियों के, बिना भौतिक सुख सुविधाओं के भी वो व्यक्ति जो है वो सुखी रह पाता है। हम अपने मंदिरों में देखते हैं कि जो भक्तगण हैं, विशेषकर जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, वो तपस्या का जीवन व्यतीत करते हैं और सरल जीवन जीते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे नहीं जाते हैं। उनके पास तो अपना बैंक बैलेंस भी नहीं होता है, अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है, और फिर भी वो कितने प्रसन्न होते हैं और उस प्रसन्नता को जो है वो बांटते हैं, क्योंकि वो उनके हृदय में कृष्ण है। तो इस प्रकार अभी जो हमें भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। अभी कुछ समय पूर्व हरि विलास महाराज ने इनिशिएशन क्लास दिया, दीक्षा का क्लास दिया। तो उन्होंने कहा, इस बात को उन्होंने कहा कि भक्तों को चाहिए कि वो सरल जीवन को व्यतीत करें। और उन्होंने कहा कि भक्तों से आग्रह किया, जो भक्त, विशेषकर जो भक्त दीक्षा ग्रहण कर रहे थे, कि आप सरल जीवन जियो, आप भौतिक उपलब्धियों के पीछे मत जाओ, और सरल जीवन जीकर आप जो भी धन अर्जन करते हो उसे भगवान की सेवा में लगाओ। और इस प्रकार जब आप कृष्ण भावनामृत में रहोगे तो आप प्रसन्न रहोगे, आप हमेशा प्रसन्न चित्त रहोगे। तो यह इतना सुंदर शिक्षा उन्होंने दिया। और उसी प्रकार हम जो है थोड़े समय पहले मैं क्लास सुन रहा था,
तो वहाँ पर चैतन्य चरण प्रभु और परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के बीच में वार्तालाप हो रही थी वर्णाश्रम के विषय में। तो उसमें उस चर्चा में ये प्रसंग चल रहा था कि वर्णाश्रम जो है वहाँ पर जो चीज़ों का अभाव होता है, जैसे कि परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने नंदग्राम में एक वर्णाश्रम की स्थापना करने हेतु एक फार्म कम्युनिटी को खोला। तो वहाँ पर पहले जो है 3 फैमिली गई थी, गृहस्थ परिवार गया था और गृहस्थ परिवार ने ही उसको विशेष रूप से उसकी स्थापना की वहाँ नंदग्राम की। तो जब भक्ति विकास स्वामी महाराज वहाँ पर गए थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो भक्तगण हैं वो भौतिक जो सुख सुविधा है उसके अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने वहीं का जो मिट्टी है उससे और लकड़ी से घर बनाया, वहीं पर रह रहे थे, वहाँ कुआं बनाया और हैंड पंप लगाया, उससे वो पानी लेते थे और लकड़ी पर, और गाय वहाँ पर थी तो गाय के जो गोबर है उससे वो भगवान के लिए भोग बनाते थे। और इस प्रकार वहाँ मंदिर बनाया, गौर निताई की स्थापना की और मंगल आरती करते थे और खेती करना शुरू किया। तो वहाँ जो है उस क्षेत्र जो है भरूच के पास, वहाँ पर धूप काफ़ी पड़ती है, ठंड भी बहुत होती है। तो धूप से क्या हुआ कि जो वहाँ भक्तगण थे उनका चेहरा जो था सब भक्तगण काले हो गए। तो जब भक्ति विकास महाराज ने देखा कि भक्तगण काले हो गए तो भक्ति विकास ने क्या नोटिस किया कि जो भी कि वो धूप से काले हो गए हैं परंतु वो उनका जो तेज है, उनके शरीर में तेज है। तो भक्ति विकास महाराज ने कहा कि भक्तों आप देखो, आप यहाँ भगवान की सेवा कर रहे हो, आप श्रील प्रभुपाद जी के मिशन को यहाँ पर स्थापित कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। तो जो भी कि बाह्य रूप से धूप से आप काले हो गए हो परंतु आपकी आत्मा जो है वो प्रसन्न है और आप इस प्रकार से आत्मा की प्रसन्नता के कारण आप तेजवान हो गए हो। आप सूर्य के समान आपका जो तेज है वो आप दैदीप्यमान हो रहे हो, आप में तेज है। तो यह अवस्था बताती है कि जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हम संतुष्ट होते हैं, और जब हम कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं तो कृष्ण भावना के अभाव में जीव जो है वह असंतुष्टि को प्राप्त करता है। तो यहाँ बद्ध जीव जो हैं वो नाना प्रकार से अपने जीवन को भरने का प्रयास करते हैं। जो कृष्ण भावना जो है वह आत्मा की स्थिति है, और वस्तुतः सभी जीव जो हैं वो आत्मा ही है। मामैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो सभी जीव जो हैं वह वो भगवान के अंश हैं, कृष्ण के अंश हैं, जीव आध्यात्मिक हैं। तो चूंकि उनका जो अहम ब्रह्मास्मि, उनका जो स्वभाव है आध्यात्मिक है, तो भौतिक चीजें जो हैं उनको कैसे प्रसन्न कर सकती हैं। जब जीव का स्वभाव, उसका मूलभूत स्वभाव जो है वह आध्यात्मिक है, तो वह भौतिक चीजें जो है वो भौतिक चीजों से उसकी अवस्था परे है। तो भौतिक चीज उसे कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? भौतिक चीज उसे कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो बद्ध जीव सिर्फ भौतिक चीजों से स्वयं को तृप्त करने का प्रयास करता है वह अपने जीवन में कभी भी संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाता है। प्रायः हम देखते हैं समाज में कि लोग जो हैं वो भौतिक कार्यों में इतने निमग्न होते हैं, इस धारणा से प्रभावित होकर कि देहात्म बुद्धि की धारणा से प्रभावित होकर वो स्वयं को देह समझते हैं और सोचते हैं कि अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने मिथ्या अहंकार को तृप्त करके वो तृप्त हो जाएंगे। और इस प्रकार वो नाना प्रकार के योजना बनाते हैं, दिन रात वो मेहनत करते हैं, और वो उनकी ये कामना होती है कि आज मैं संतुष्ट नहीं हूँ परंतु जब मैं मेहनत करूँगा और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। और इस प्रकार जो है उनका जीवन जो है वह जीवन निकलता जाता है, एक एक क्षण जो है उनके जीवन से निकलता जाता है। एक क्षण जो है, एक एक घंटा, एक एक दिन जो है, एक एक महीना, एक वर्ष, इस प्रकार से निकलता जाता है, और उनको पता नहीं चलता है कि किस प्रकार से उनका सारा जीवन जो है वह भौतिक चीज़ों को जुटाने में, भौतिक अवस्था को सुलभ करने में उनका जीवन जो है व्यतीत हो जाता है, और इस प्रकार से उनका मानव जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाता है। तो वस्तुतः जब तक जीव कृष्ण भावना भावित नहीं होगा वह अपने जीवन में सुख संतोष को प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं जो उस श्लोक से, जो श्लोक को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मतिर्न कृष्णे परतः सतोबा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर विशदाम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। तो
जो व्यक्ति मतिर न कृष्णे, तो यदि उनका मति कृष्ण में नहीं लगा है, वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, मतिर न कृष्णे परतः सतोवा, या तो वो स्वयं की इच्छा से कृष्ण भावनामृत में नहीं लगा पा रहे हैं, या किसी के सलाह से, उनको ये सलाह दे रहा है पुस्तक ले लो, नहीं लेते हैं, भगवद गीता ले लो, भक्तगण जो हैं जाते हैं बद्ध जीवों के द्वार द्वार जाते हैं उनको कृष्ण भावना करने के लिए, उनका हित करने के लिए। तो परतः सतोवा, या दोनों के प्रयास से, या आप स्वयं के प्रयास से या दूसरों के प्रयास से, यदि वो मतिर न कृष्ण परतः सतोवा मिथो भी पद्येत गृह व्रता नाम, वो क्योंकि उन्होंने गृह जो है मेधि का व्रत लिया है कि मैं इसी जहाँ जन्मा हूँ यहीं पर मरूंगा और मैं कृष्ण भावना भावित नहीं होऊंगा, ऐसा व्रत ले लिया है। तो अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः शर्वित चर्वनानाम, तो वो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वह पुनः पुनः शर्वित चर्वनानाम कर रहे हैं, और जो चीजों को चूस चुके हैं उसी चीजों को वो चूसने का पुनः पुनः अभ्यास कर रहे हैं। जैसे जीव संसार में किस प्रकार के चीजों को आनंद लेने का प्रयास करता है, तो वह है आहार निद्रा भय मैथुनश्च समान एतः पशु भी नरानाम, वह खाना पीना, निद्रा सोना, भय से रक्षा करना और संतान उत्पत्ति करना, यह जो है आहार निद्रा भय मैथुन जो है, इन चीजों को कर कर अपनी इंद्रियों से इसका भोग विलास करने का प्रयास करता है। परंतु यह जो है यह पुनः पुनः चर्विता चर्वणा नाम है। बद्ध जीवों के लिए आहार निद्रा भय मैथुन कोई नया वस्तु नहीं है। जब से बद्ध जीव इस संसार में आता है तो इस भौतिक संसार में तो इन्हीं कार्यों में वो संलग्न रहता है। जिस भी जीव की योनि को ग्रहण करता है 84 लाख योनियों में, सभी योनियों में वो आहार निद्रा भय मैथुन ही करता है। तो अभी मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म जो है धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना, तो यह मनुष्य जन्म जो है यह जीव को प्राप्त होता है जिससे कि वह आहार निद्रा भय मैथुन से वो मुक्त हो सके और वो भगवान की भक्ति में लग सके, और इस प्रकार से वो अपने जीवन को सार्थक कर सके, भगवान की भक्ति में वो रत हो सके। परंतु भगवत भक्ति के अभाव में, कृष्ण भावनामृत के अभाव में दुर्भाग्यवश जीव जो है वह निरंतर पुनः पुनः शर्वित चर्वना नाम वो करता रहता है, और इस प्रकार उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार उसका जीवन कभी भी अपने जीवन में वास्तविक संतुष्टि को प्राप्त नहीं करता है। यहाँ शिला प्रभुपाद कहते हैं, पीपल आर प्रिपेयर्ड टू अंडरगो मृत्यु संसार वर्तमनी, टेकिंग बर्थ इन वन फॉर्म एंड डाइंग, एक्सेप्टिंग अनदर फॉर्म एंड डाइंग अगेन। तो जो लोग हैं वह अज्ञानतावश वह स्वयं को इस मृत्यु संसार वर्तमनी ये चक्र से निकालने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर अज्ञानता इतनी हावी हो चुकी है। वह जो है अज्ञानता में ही अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वेद कहते हैं अस्तो मां सदगमय, जो हम असत में ना रहें परंतु सत की तरफ जाएं। मृत्यु मां अमृतम गम्य, हम मृत्यु को छोड़कर हम अमृत की तरफ जो है अमृतत्व की तरफ जाएं। तो जो लोग हैं वो अज्ञानतावश मृत्यु संसार वर्तमनी, यह जन्म लिया है और वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, परंतु वो उसका ध्यान नहीं करते हैं, और उनकी चेष्टा को देखकर, उनके प्रयास को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो कभी मरेंगे ही नहीं। दिन रात वो कार्य करते रहते हैं, अपने इंद्रियों को तृप्त करने का चेष्टा करते हैं, और जब हम उन्हें कृष्ण भावनामृत के लिए उनको जगाते हैं तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, और यह जो है मेरे पास समय नहीं है, मैं इसको बाद में करूँगा, मैं बाद में इसको कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करूँगा। और जो है जो भक्त जो है कृपा करके उनको जगाने के लिए उनके द्वार पर आते हैं, परंतु उस प्रकार से वो तिरस्कृत करते हैं, उनका अपने सौभाग्य को तिरस्कृत कर देते हैं, और उन्हें क्या प्राप्त होता है, तो वो मृत्यु संसार वर्तमनी, वो जन्म मृत्यु का चक्र में वो निरंतर उसमें वो पिसते रहते हैं। तो भक्त जो हैं, जो भक्त लोग हैं, वो कृपा करके वह भगवान के इस कृपा को वो बांटते हैं। भगवान
की इच्छा है, भगवान चाहते हैं कि इसका वितरण हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निद्रा जागो माया पिशाचीरा खोले। तो चैतन्य महाप्रभु की ये इच्छा है कि बद्ध जीव जो हैं वो जागें और कृष्ण का नाम ग्रहण करें, वो कृष्ण का नाम लें। क्योंकि जैसे ही कृष्ण उनके जीवन में आते हैं, जैसे ही वो कृष्ण को ग्रहण करते हैं, उनका जीवन जो है वह धन्य हो जाता है, उनका सौभाग्य का उदय होता है। तो वस्तुतः कृष्ण भावनामृत के अभाव में जीव जो है वह निरंतर कष्ट में होता है और निरंतर वो संसार में दुख को पाता रहता है। और कृष्ण कथा जो है वही बद्ध जीव के जीवन में सौभाग्य को उत्पन्न करता है। इसलिए हमें निरंतर कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। जैसे हम जो साधक भक्त हैं, तो हम कृष्ण कथा को उतना ही श्रवण कर सकते जितना हमें टेस्ट है, जितना हमें टेस्ट है उतनी मात्रा में हम उसको ग्रहण करते हैं। और चूंकि हम पूर्णतः शुद्ध नहीं है, जैसे कि यहाँ महाराज परीक्षित की अवस्था है, हम उस अवस्था में नहीं है, इसलिए कृष्ण कथा भी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, अभी मैं कृष्ण को छोड़कर कुछ और कार्य को करूँगा, कुछ ऐसे भौतिक कार्य करूँगा जो हमें ज़्यादा मनोरंजन दे रहा हो। तो यह अवस्था ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो है हमारी अवस्था बद्ध है और हमारे अंदर कृष्ण को प्राप्त करने का उतना तेज नहीं है, तीव्रता नहीं है। जैसे शास्त्र में कहा गया, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। हमें तीव्रता से भगवान को भजन करना है, तीव्रता से हमें बहुत लालायित होकर कृष्ण कथा को श्रवण करना है, श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ना है। लेकिन इन पुस्तकों को अध्ययन करना, अभ्यास करना, यह जो है एक साधक भक्त के लिए तपस्या रूप में जो है वो प्रतीत होता है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा भी कि मेरे आंदोलन में एक कमी है कि मेरे भक्त जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में मेरे पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं। तो हमें इसे समझकर कि कृष्ण कथा ही हमारे जीवन का सार है और कृष्ण नाम जो है वो हमारे जीवन का सर्वस्व है, इसे जानकर हमें कृष्ण कथा को श्रवण करने का, श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ने का हमें अभ्यास करना चाहिए। जब हम इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो हम जो है संतुष्ट होते हैं और हमारे जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो भौतिक लालसा है, उससे हम मुक्त हो पाते हैं। तो भौतिक लालसा जो है वो जीवन में कष्ट का कारण है। और हम जब देखते हैं अपने जीवन में भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में जो भौतिक कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उसमें ह्रास होता है और आध्यात्मिक इच्छाएं जो हैं, आध्यात्मिक कामना है, उसमें वृद्धि होती है। तो कभी कभी जो अभक्त हैं वो लोग भक्तों के जीवन को देखकर बड़े विस्मृत हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे ऐसा कैसे, इतना सरल जीवन ये जी रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इतना सरल जीवन जी रहे हैं और इतने प्रसन्न कैसे हैं। कभी कभी जो अभक्त हैं वो इस प्रकार सोचते हैं कि इतने प्रसन्न कैसे हैं। एक बार जयद्वैत स्वामी महाराज बता रहे थे कि एक जगह पर मंदिर था और वहाँ भक्तगण जो हैं वो सुबह मंगल आरती करते थे, कीर्तन करते थे और सब भक्त लोग जो हैं एकत्रित होकर एक साथ प्रसादम ग्रहण करते थे और बहुत प्रसन्न रहते थे। तो उसको देखकर जो पड़ोसी थे, जो अभक्त थे, वो बहुत जलते थे और पड़ोसी लोग कहते थे कि तुम लोगों को क्या है, तुम लोग तो सिर्फ हमें हरे कृष्णा करते रहते हो, तुम लोगों को बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा अच्छा खाते रहते हो, हंसते रहते हो, हमें देखो हमको कितना मेहनत करना पड़ता है, हम कितना दिन रात मेहनत करते हैं और तुम लोग जो है कोई काम नहीं करते हो, कुछ पैसा अर्जन नहीं करते हो, हमेशा प्रसाद खाते रहते हो, हरे कृष्णा करते रहते हो। तो जयदत्त महाराज ने कहा कि आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप भी हमें ज्वाइन हो जाइए, आप भी हमारे पास आ जाइए, हमें ज्वाइन हो जाइए, आप इस आंदोलन में आप संलग्न हो जाइए, आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। तो वो ऐसा नहीं कर सकते। एक बार एक राजा गौर किशोरदास बाबा जी के महाराज के पास आया और वो राजा गौर किशोरदास बाबा जी के पास आया और कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं आपको उसको करने के लिए, आप मेरे गुरुदेव हैं तो मैं आपके आज्ञा पालन करने के लिए हमेशा मैं तैयार रहूँगा।
मैं हमेशा आपकी आज्ञा को पालन करूंगा, आप मुझे शरण दीजिए। इस प्रकार से गौर किशोरदास बाबा जी के पास राजा आकर कहा, तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा, ठीक है राजा, आप ऐसा करो, आप अपने महल में मत जाओ, आप यहीं पर बैठो और मेरे साथ बैठकर भजन करो। तो राजा जो था वो घबरा गया, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से कभी कभी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो हैं बहुत सीरियस थे, और कभी इस प्रकार से वो मजाक भी करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भौतिकवादी लोग हैं, वह जो हैं वो कृष्ण कथा को भी ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, और भक्तों से वो ईर्ष्या करते हैं कि भक्त इतने सुखी क्यों हैं और इस प्रकार से इतने आनंदित क्यों हैं। और कभी कभी उनको हम प्रचार करने जाते हैं, विशेषकर जो विदेशों में जो भक्तगण प्रचार करने जाते हैं, तो उनको जो गवर्नमेंट है वो सोचती है कि ये लोग ब्रेन वॉश्ड हैं। विशेषकर जब रशिया में भक्तगण प्रचार कर रहे थे, उस समय जो रशियन गवर्नमेंट थी, उस समय जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वो भक्तों को वो सोचते थे कि ये लोग ब्रेन वॉश्ड हैं, और इस प्रकार भक्तों को टॉर्चर करती थी। तो वो भक्तों की अवस्था को नहीं समझ सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है वही जीव के लिए कल्याणकारी है, और वास्तव में जो जीव की वास्तविक अवस्था है वो कृष्ण भावना ही है। जो जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, जीव का जो मूल स्वरूप है, आत्मा का जो मूल स्वरूप है, वह कृष्ण का दास होना है, कृष्ण भावना भावित होना है, और इस प्रकार से कृष्ण की सेवा में रत होना है। वह जीव का मूल स्वभाव है। जो भौतिक बद्ध स्वभाव जो है, देहात्म बुद्धि का जो स्वभाव है, वह जीव का वास्तविक स्वभाव नहीं है। इसलिए देहात्म बुद्धि में रहकर जीव जो है वह कितना भी प्रयास कर ले सुखी होने का, वह सुखी नहीं हो सकता है। जैसा कि उदाहरण दिया जाता है कि एक तोता है, उसको पिंजड़े में रखा गया है, और पिंजड़ा जो है वह सोने चांदी का बनाया हुआ, हीरे व जवाहरात से जड़ा हुआ है। और यदि हम पिंजड़ा का ही ध्यान देते रहेंगे, पिंजड़ा को ही साफ करते रहेंगे और उसको पॉलिश करते रहेंगे, और हम यदि तोते को नहीं खिलाएंगे, उसको दाना देना भूल जाएंगे, हम पिंजड़े को देखकर इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो तोता को खाना खिलाना भूल जाते हैं, तो तोता जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह शरीर जो है, या भौतिक शरीर जो है, वह पिंजड़ा के समान है, और जो आत्मा है वह जीवित है। जो आत्मा के कारण यह शरीर जो है, यह इसकी अवस्था है। जब जैसे ही आत्मा इस शरीर को त्याग देती है, इस शरीर जो है इसकी अवस्था नष्ट हो जाती है, शरीर जो है विलीन हो जाता है। तो इसलिए हमें शरीर को जो है सिर्फ ध्यान नहीं देना चाहिए, जो भी कि हम देहात्म बुद्धि की अवस्था में हैं, परंतु शरीर की आवश्यकताओं को सिर्फ ना ध्यान में रखकर हमें आत्मा की आवश्यकताओं को भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वस्तुतः जो हमारा मूल स्थिति है, जो हमारा मूल स्वभाव है, वह आत्मा का है। हमारा मूल स्वभाव आध्यात्मिक है। इसलिए जो जीव है वह जब आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करता है, तो वस्तुतः उसके जीवन में आनंद जो है, सुख और शांति जो है वह व्याप्त होती है, वह शुरुआत होती है। यहाँ मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।